Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 14 April 2021 and I am teaching you chapter number 1, organ system. So, let revise what we have done in our previous video. So, what are the organs of the respiratory system? After digestive system, I explained you respiratory system, and what are the organs of the respiratory system? See, nostril, windpipe, left and right lungs, bronchi, bronchiole, alveoli. These three names are not mentioned in your book. When you draw a diagram of the respiratory system, then add these three things: bronchi, bronchiole and alveoli. Okay, then blood vessel and diaphragm. So now when you take the air from the nose, is it clear? Now when you take the air from the nose, the air travels through the nose, because we have to take air from the nose, because in nose we have hairs and a mucus, sticky liquid, that is known as mucus. So what role they play? They stop the dust particles and germs to enter inside our lungs. Okay, now the air travel from the nostril through the windpipe into the lungs, and here see it is divided. This is bronchi. One enter into the left lung and one enter into the right lungs. Okay, so now you will see there is a network of branches. Observe the picture. Here you will see there are network of branches. These branches are known as bronchiole. These branches are known as bronchioles. Again, student, observe the diagram. You will see small ball like structure. So now the question arises, what is this ball like structure? This is known as alveoli. Okay, and blood vessels are also in the lungs. So when you breathe in, then ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इन योर लंग्स. कहाँ पे आ जाती है? लंग्स पे आ जाती है. ठीक है. नाउ एंड दीज ब्रोंक्यूल्स, दीज आर थिन ट्यूब. हाउ मेनी? 60,000 ट्यूब्स, and these tubes are filled with the air when we breathe in. So at time, and we have two pair of lungs, so 30,000 bronchioles in right and 30,000 bronchioles in the left. Okay, 30,000 bronchioles in the right and 30,000 bronchioles in the left, means 30,000 in the right one and 30,000 in the left lung, these bronchioles. Okay, now again you observe the picture. You will see small balls. What are these? These are known as alveoli. These are known as alveoli. Okay, now when you breathe in, so these bronchioles, these tubes are filled with the air. These tubes are filled with the air. Now what is the role? Oxygen enter inside our body, and through the blood it is circulated to all parts of the body. And what is the reason for that? The nutrients, because I already explained you the process of a digestive system. In digestive system, in small intestine, maximum observation take place in small intestine. I have already explained you, in small intestine there is a villi, finger like projection. That is what? That is a network of a blood vessels. So here the nutrients which are absorbed from the food
that enters into the blood so that it is circulated to all parts of the energy, because every part of the body needs energy to perform different types of activities. Now here what happens, so from where the oxygen is coming student, the oxygen is coming from the lungs. ठीक है, ऑक्सीजन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जा रही है। रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है, जिसको हम लोग ने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से डिफर है। जो हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं दैट इंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, जब हमने इनहेल किया तो इट ऑक्सीजन कम हियर, सो ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड, ठीक है, इट सर्कुलेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी essential for us, because it breaks the nutrients, because it provides energy। ठीक है, इट ब्रेक, जो न्यूट्रेंट हमने ऑब्जर्व किए हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिससे कि बॉडी के सारे पार्ट को वर्क करने के लिए क्या मिले, एनर्जी मिले। इसके लिए ऑक्सीजन ही करता है ये काम। तो अब यहाँ ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, लंग्स से। अब लंग्स में देखो ब्लड वेसल्स भी हैं, तो ये ऑक्सीजन जो आई, जो ब्लड में मिक्सअप हो गई, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द हार्ट इट पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, इज इट क्लियर, बिकॉज आवर बॉडी बनी किससे है, सबसे स्मॉल यूनिट सेल से बनी है। ठीक है, और सेल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी होते हैं, और जो सेम सेल्स होते हैं दे ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू, and tissue join together to make a organ, and many organ when work together to perform a specific function, that is known as organ system. Now here see the oxygen enter through the blood vessels, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में गई। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है, पूरे बॉडी के पार्ट में सर्कुलेट होगा। जो फूड में जो एनर्जी है उसको रिलीज करने का ये काम ये करती है, जिससे सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एल्वोलाई, अब देखो ब्रोंक्यूल्स में क्या है, व्हेन द एयर कम्स फ्रॉम द विंड पाइप, यही ट्यूब्स हैं 60,000, 30 इन राइट एंड 30 इन लेफ्ट, दीज आर फिल्ड विद द these are filled when we take in air। okay, now अब देखो what is alveoli, alveoli क्या है, these ball like structure को भी alveoli बोला हमने। अब देखो what role play by alveoli, so this is a exchange center of the gases। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, alveoli से ऑक्सीजन रिच गैस ब्लड के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती है। ठीक है, और पूरे बॉडी में से जब रिटर्न होता है ना, ठीक है, और व्हेन वी इनहेल, एक्सहेल, इनहेल किया तब तो ऑक्सीजन आई, एक्सहेल जब हम करते हैं तो बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा कहाँ जाती है, लंग्स में आ जाती है, और हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, और अगेन फिर हम फ्रेश एयर को नोज से फिर लंग्स में ले लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, यही प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस होती रहती है। ठीक है, तो एल्वेलाई इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वी टेक ऑक्सीजन मिक्स गोज विद द ब्लड एंड द टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, जिसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी बोल सकते हो, द ब्लड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इट अगेन कम इनटू द हार्ट, और हार्ट से जब हम एक्सहेल कर देंगे देन इट गोज आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन वी टेक अगेन फ्रेश एयर, दैट इज ऑक्सीजन। So this process is continuous all the time. In this way the respiratory system, our respiratory system function. Now see this,
What is this? This is diaphragm. So what is the, this is the largest muscle of the body, and what role play by this diaphragm? What is the role of this? See these two, when you breathe in, put your hand on your chest. When you breathe in, then what you will feel? You feel that your chest expand, and when you breathe out, at that time you will feel that your chest contract, छोटा हो रहा है, contract हो रहा है, ठीक है. So when the air is, when air we breathe in, at that time our lungs expand. So this system, that is a diaphragm, it gives support to the lungs. It gives support to the lungs. That is the reason we have diaphragm. Okay. So ये फिगर पे तो बता लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू नोट डाउन so that you can make a notes on respiratory system. कुछ नोट्स है, आप नोट कर लो, ठीक है. First of all, organs of respiratory सिस्टम, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये मैंने लेवल करके डायग्राम में ही बता दिया है, तो आप वहां से नोट कर सकते हो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द ईयर, the ear from the nose, the air from the nose travels down to the wind pipe. नोज से जो आप एयर लिए वो कहाँ नीचे कैसे आएगी? थ्रू द विंड पाइप, एंड enters our lungs. These are the notes. आप इसे लिख लोगे तो आपको समझने और पढ़ने में दोनों आसानी होगी. स्टार्टिंग का मैंने नहीं लिखा है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि जब हम नोज से एयर क्यों लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है, वाई वी टेक एयर फ्रॉम द नोज. So we take air from the nose because in nose we have hairs and mucus which stop the dust particles and germs entering in our lungs. Enters our lungs. Now student, in the lungs, ठीक है, in the lungs you will see network of branches. Okay,
and these are known as bronchioles. These are known as bronchioles. These are known as bronchioles. And how many? I have already tell you number of tubes. These bronchioles are 60,000, 30,000 in each lungs. There are 60,000 tubes in lungs. 30,000 in each lungs. Okay. $30,000 in each lungs. Now, what is the role, or you can say what is the function of these bronchioles? Is it clear? What is the role, or you can say what is the function of these bronchioles? So you can write these किसके लिए यूज किया है? ब्रोंक्यूल्स के लिए. ठीक है, these bronchioles. So and these, what is the role play by these bronchioles? So note down these small tubes, which take air inside and outside the body. Is it clear? These small tubes which take air inside and outside the body. ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो एयर हम इन लेते हैं, दैट एयर इज फिल्ड इन दीज स्मॉल ट्यूब्स, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स आर 60,000, बट 30,000 इन बोथ द लंग्स. सो इनका रोल क्या है? दीज स्मॉल ट्यूब्स विच आर नोन एज bronchioles, these small tubes which take air inside and outside the body. ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लिया, ऊपर का रब कर दे रहे हैं. अब आगे का इसका फंक्शन नोट कर लो. Now see, अब डायग्राम में तुमने स्मॉल बॉल्स देखे थे, जैसे एल्वोली बोला था हमने, स्मॉल बॉल्स इन द डायग्राम that are known
that are known as that are known as alveoli. Al that are known as, so small balls in the diagram that are known as alveoli, जो मैंने आप लोग को बताया था, that is known as alveoli. Okay, now what is the role, or you can say what is the function of alveoli in the lungs. ठीक है, अब इन alveoli का क्या फंक्शन है, अब इसको समझ लेते हैं. What is the function of alveoli? So from now what's happened, from here oxygen, from here oxygen goes to blood. ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने ऑलरेडी तुम लोग को डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक प्लेस एट दीज स्मॉल balls which you have observed in the diagram, and that is known as alveoli. Okay, now oxygen goes to blood, from here oxygen goes to blood and carbon dioxide and carbon dioxide comes from blood, into lungs, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगी, कम्स फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स. सो यू कैन से दैट व्हाट्स हैपन हियर, alveoli फ्रॉम हियर ऑक्सीजन गोज टू ब्लड, ऑक्सीजन किस में जा रही है, ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स. ठीक है, यहाँ ये alveoli है, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट. यहाँ से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रही है, और ब्लड के थ्रू क्या हो रही है, वो पूरे बॉडी पार्ट में क्या सर्कुलेट हो जा रही है, इट सर्कुलेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑक्सीजन ब्रेक द फूड टू रिलीज द एनर्जी. इज इट क्लियर? बिकॉज ऑक्सीजन ब्रेक द फूड टू रिलीज द एनर्जी सो दैट वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है. फूड ब्रेक डाउन होते हैं क्योंकि न्यूट्रेंट सारे ऑब्जर्व होके कहाँ गए थे, ब्लड स्ट्रीम में. दैट इज द रीजन फ्रॉम हियर ऑक्सीजन गोज टू ब्लड. अब ये ब्लड में पूरी ऑक्सीजन गई, नाउ इट विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इट मूव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So you can say that student, so alveoli, for this alveoli you can say that, so here exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place. Is it clear? So we can say that here exchange of gases take place. CO2 comes from blood and oxygen goes into the blood. Now alveoli, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, alveoli इज आल्सो नोन एज द एक्सचेंज सेंटर ऑफ द गैसेस. ठीक है, alveoli इज आल्सो नोन एज द एक्सचेंज सेंटर ऑफ द गैसेस, दैट इज
oxygen goes into the blood, and from the blood carbon dioxide come into the lungs. Is it clear? Now after that, one more thing is diaphragm. Diaphragm. Okay, diaphragm. Already I explained you. This is the muscle. This is the largest muscle of our body. Diaphragm क्या है? Largest muscle of the body. Diaphragm is the largest muscle of the body. And what, देखो इन दोनों का मैंने स्पेशली तुमको इसलिए लिखवा दिया फंक्शन एल्वोलाई का कि, और इसे लेबल कर लेना अपने डायग्राम में, क्योंकि बुक में एल्वोलाई वर्ड यूज नहीं किया है, ना तो ब्रोंकाई यूज किया है ना तो ब्रोंक्यूल्स किया है, इसलिए मैंने इनके फंक्शंस आपको लिखवा दिए। अब डायफ्राम का तो मैंने ऑलरेडी बताया है, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, एंड व्हाट्स हैपन हियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड, इन दिस मैनर ऑक्सीजन मूव टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी बोल सकते हो। क्यों डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोला, क्योंकि दैट ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गोज इनटू द लंग्स, और लंग्स से वो जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो आउट हो जाता है, एंड देन वी इनहेल मीन्स वी टेक अगेन फ्रेश एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू वो आया लंग्स में, तो लंग्स से ब्लड बाहर नहीं हो रहा है, इस बात को समझो। ब्लड इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल गई, और जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो अगेन द फ्रेश ऑक्सीजन गेट मिक्स इन द ब्लड, एंड दिस मैनर the whole process is continuous. This is the complete respiratory system. So few notes I have also given on the respiratory system. Now few tips are given how you can keep your respiratory system healthy, ठीक है। कुछ टिप्स दिए हैं कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है। सो यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स। अनदर, ओपन द डोर एंड विंडोज ऑफ आवर रूम टू लेट इन फ्रेश एयर। देखो जहाँ जो भी हमारा घर होना चाहिए उसमें विंडोज होनी चाहिए, ठीक है। सो डैट, देखो उस ए गुड हाउस हम उसी को बोल सकते हैं दैट हाउस हैव ए प्रॉपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स होता है द fresh enter of the fresh air inside the house. Is it clear? So proper ventilation होना चाहिए, ठीक। सो ये दो टिप्स हैं। अब देखो डिड यू नो में दिया है, इफ द लंग्स वर ओपन फ्लैट दे वुड कवर द एंटायर साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट। अगर लंग्स को फ्लैट ओपन करो तो टेनिस का जितना बड़ा कोर्ट होता है ना उसको पूरा कवर कर लेंगे लंग्स। इज इट क्लियर? अब आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम जो है तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में से टीच करेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो यू नो स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, सो मेन 4 ऑर्गन्स, जो 4 मेन ऑर्गन है, पार्ट हैं किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। The main 4 organs of the circulatory systems are, what is that, heart, ठीक है, artery, vein and capillaries, ठीक है। यही 4 मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स है। आपका हार्ट है, ठीक है, आर्टरी है, वेन्स एंड कैपिलरीज है। सो दीज द हार्ट, द आर्टरी, कैपिलरीज एंड द वेन्स आर टुगेदर कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वाई देर इज, देखो सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है ना, थ्रू आउट लाइफ ये वर्क करते हैं। वंस अ बर्थ, आफ्टर ए बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू आउट
वर्क करते हैं. इफ दे स्टॉप फंक्शनिंग, इट मीन्स द पर्सन इज डेड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.